Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So class, in this lecture number 5, I am going to solve the problems on the binding energy and excitation energy, and they are all BI past problems of the chapter number 18. So this is the last lecture of this chapter. Okay, so these are the numericals which I am going to solve in this chapter. Almost 30 years VI के पास numericals. It contains energy, radius, binding energy, hydrogen spectrum, absorption spectrum, excitation and emission spectrum, de-excitation numerical, and the rest of ones are almost 23 numericals. Question number 22 is very difficult, and 21 is almost same. Both contain excitation and de-excitation in a single numerical. So these are the problems which I am going to solve in this chapter. So this is the last lecture of this chapter, lecture number 5. In this lecture I am going to solve the problems number 21, 22 and 23. 22 is the most difficult problem of this chapter. Okay, now let's discuss about the C formula of the lecture number 1. So the angular momentum is equal to ln and h cut, where n is the principal quantum number, h cut जो है यहाँ पर ड्रैग कांस्टेंट होता है. तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास होता है एन एच कट फॉर द हाइड्रोजन एटम बाय बोहर मॉडल. और एल एन का फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का एक ये भी होता है एम वी आर, वेयर एम वी इज़ द लीनियर मोमेंटम. सो यू कैन ऑल्सो राइट एल एन इज इक्वल टू पी आर, where p is the linear momentum, L is the angular momentum, and r is the radius of that orbit. For the radius, we can write Rn is equal to n square h cut square k m e square, where h cut is the drag constant, k is the Coulomb constant, m is the mass of electron, e is the charge of electron, and n is the principal quantum number or shell number. So after placing all constants value, this formula will become Rn is equal to n square 0.53 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर. तो यहाँ पर रेडियस का फॉर्मूला है. ऊपर का फॉर्मूला जो है वो विदाउट वैल्यूज़ था, नीचे का फॉर्मूला जो है वैल्यूज़ रखने के बाद जो कैलकुलेट फॉर्मूला आता है आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एनर्जीज तो ड्यूरिंग मोशन इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल इट possess both kinetic and potential energy. तो फॉर द फॉर्मूला ऑफ kinetic energy is k e square divided by 2 Rn. Similarly, for potential energy is equal to minus k e square divided by Rn, where negative sign is due to the force of negative work done by the electron moving away from the nucleus. And the total energy of the binding energy of that electron in that shell, which is the sum of kinetic and potential energy, is equal to minus k e square divided by 2 Rn. तो इलेक्ट्रॉन की जो शेल में टोटल एनर्जी आती है, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं या शेल की एनर्जी कहते हैं, जो कि नेगेटिव होती है, बाउंड एनर्जी, उसका फॉर्मूला है के ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर एन. इस इक्वेशन को हम इससे भी मालूम कर सकते हैं, ई एन इज इक्वल टू के ई एन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एन. इसी फॉर्मूले से ये डेरिवेशन हुई है. वेयर एच इज़ द प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34. एच कट इज द ड्रैग कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 1.05 एक्सपोनेंट माइनस 34, मोर एक्यूरेट देन प्लांक्स कांस्टेंट. एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, and k is the Coulomb constants. Okay, so these are the few formulae which I am going to use in this lecture. Okay, now let's move towards our first numerical, problem number 1. आपको इन सब की वर्कशीट जो है यूट्यूब के लिंक्स में अवेलेबल है. हर यूट्यूब के लिंक में चैप्टर्स की वर्कशीट, न्यूमेरिकल की वर्कशीट, फॉर्मूला शीट अवेलेबल है गूगल ड्राइव से. आप लेक्चर की जो डिटेल्स होती हैं, डिस्क्रिप्शंस होती हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा. यू कैन गेट फ्रॉम देयर.
Okay, now in the formula of excitation and de-excitation equations, by using third postulate of Bohr atomic model, that is delta E is equal to energy of higher shell minus energy of the lower shell. तो बोहर के पोस्टुलेट में जो इसका थर्ड पोस्टुलेट है उसमें बताते हैं कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन का जब फिनोमेना होता है तो इसमें एनर्जी जो है वो जब ट्रांजिशन होती है डी एक्साइटेशन में, इलेक्ट्रॉन को जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक लोअर शेल से हायर शेल पे चला जाता है, जहाँ पे वो एक्सपोनेंट -8 सेकंड के लिए स्टे करता है। उसके बाद डी एक्साइट होता है और डी एक्साइटेशन में जो वो एनर्जी या फोटोन इमिट करता है उसको हम डेल्टा ई कहते हैं। ओके, so delta E is the photon energy of photon, where E higher shell minus energy of the lower shell. So in this diagram you can see a nucleus and a first orbit or the ground state or lower level. इसको हम NF से, इस quantum principal quantum number को हम NF से represent करेंगे in the whole chapter. And this is another higher shell which we call excited or higher shell. excited state कहलाएगी ये। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हुआ है, ठीक है, बाय एब्जॉर्बिंग सम एनर्जी। सो वी कॉल दिस प्रिंसिपल क्वांटम स्टेट एज NI। तो थ्रू आउट दी चैप्टर्स में हम यहाँ पर NI जो है वो हायर शेल के क्वांटम नंबर को कहेंगे और NF जो है वो लोअर शेल के क्वांटम नंबर को कहेंगे। ओके, सो इस बोहर के थर्ड पोस्टुलेट को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ हायर शेल माइनस एनर्जी ऑफ द लोअर शेल, एंड एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E is equal to HF or HC over lambda, which we have discussed in our last lecture number 2. And we can also write in term of quantum numbers the energy of photon is equal to ENI minus ENF. NI जो है वो कौन सी स्टेट है, हायर शेल की, और NF कौन सी है, लोअर शेल की। अब इसी इक्वेशन को हम इन टर्म ऑफ एक्साइटेशन भी लिख सकते हैं कि एनर्जी एक्साइटेशन इज इक्वल टू ENI माइनस ENF। सिमिलरली एनर्जी ऑफ डी एक्साइटेशन इज इक्वल टू ENI माइनस ENF, एंड ई आयोनाइजेशन इज ऑल्सो इक्वल टू ENI माइनस ENF। तो ये एक ही फार्मूले की 3-4 फेजेस हैं हमारे पास जो कि न्यूमेरिकल्स में हम यूज़ करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे याद रखने वाली वो ये है कि एनर्जी ऑफ फोटोन हो, डेल्टा ई हो, एनर्जी एक्साइटेशन हो, डी एक्साइटेशन हो या आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सारी एनर्जी जो लेफ़्ट हैंड साइड पर आ रही हैं ये सब क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। और इलेक्ट्रॉन जिन शेल्स में मौजूद होता है, भले वो ग्राउंड स्टेट हो या कोई भी हायर एक्साइटेड स्टेट हो, EN1 हो, N2 हो, N3 हो, इलेक्ट्रॉन के शेल्स की एनर्जी सेल्फ क्या होती है, नेगेटिव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है आपने। दोबारा सुन लीजिए, फोटोन की एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, डी एक्साइटेशन एनर्जी, जो लेफ़्ट हैंड साइड पर जितनी भी एनर्जी आ रही है डेल्टा ई के बाद से नीचे तक, ये सब एनर्जीज पॉजिटिव होती हैं। और राइट साइड पे जो हम डिफरेंस ले रहे हैं, हायर एनर्जी ऑफ हायर शेल या एनर्जी ऑफ लोअर शेल्स, जितनी भी शेल्स की एनर्जीज होती हैं इलेक्ट्रॉन की, वो बाउंड एनर्जी कहलाती हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाउंड हुआ होता है, वो एनर्जी नेगेटिव आती है ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन इज डूइंग नेगेटिव वर्क बाय मूविंग अगेंस्ट द न्यूक्लियस। तो इस वजह से शेल की सारी एनर्जी नेगेटिव होती हैं। ये जो प्लस VE का मतलब पॉजिटिव है और माइनस VE का मतलब नेगेटिव, और NF का भी मतलब नेगेटिव आ रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आपने केयरफुली याद करना है। नाउ फॉर द एनर्जी ऑफ द nth शेल। अब एनर्जी ऑफ nth शेल यानी NI और NF का इटसेल्फ भी एक सिंपल फार्मूला है। वो क्या है, एनर्जी ऑफ द nth शेल और nth ऑर्बिट इज गिवन बाय EN इज इक्वल टू E1 अपॉन n स्क्वायर। किसी भी शेल की अगर आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी, EN इज इक्वल टू वो E1 अपॉन EN स्क्वायर। E1 ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होती है, जिसका फार्मूला, जिसकी वैल्यू E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन जूल E इज इक्वल टू -2.18 एक्सपोनेंट -18 जूल होती है। ओके, नोट डाउन ऑल दिस फार्मूला केयरफुली। Okay, now first of all I am discussing the formula for the hydrogen spectrum. The wavelength of photon is given by 1 over lambda is equal to RH, where R is the Rydberg constant divided by 1 upon NF square minus 1 upon NI square,
where Ni is the higher shell or higher orbit or higher state of atom, and Nf is the lower shell or lower level where electron occupy its position. तो Ni हमारे पास जो है, जो न्यूक्लियस के बाद शेल्स आते हैं KLMN, वो हायर शेल कहलाएगा, और Nf जो है हमारे पास लोअर शेल कहलाएगा डी एक्साइटेशन में, यानी कि ट्रांजिशन में फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल। इसमें जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर लेवल में ट्रांजिशन करता है, डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग, लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज जो नज़र आ रही हैं आपको, इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के दौरान फोटोन इमिट करता है या एनर्जी जो रिलीज़ करता है फोटोन की शक्ल में, उसकी वेवलेंथ निकालने का ये फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू RH 1/NF² माइनस 1/Ni²। RH is the Rydberg constant, its value is given 1.09 exponent 7 meter inverse, and by the help of wavelength you can find its energy of photon, that is E is equal to HF or E is equal to HC over lambda, where H is the Planck's constant, C is the speed of light. Okay, so problem number 21 of lecture number 5. In an experiment of the excitation potential of a hydrogen are found at 1.9 volt, 10.21 volt and 12.1 volt. These are the excitation potentials. Then three different spectral lines are emitted. So find out their wavelength. तो 3 एक्साइटेशन पोटेंशियल्स आपको गिवन है वोल्टेजेस में। आपने इन पोटेंशियल्स की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है कि इन पोटेंशियल्स पे जो फोटोन एमिट हुआ है उसकी वेवलेंथ क्या है। These are the answers in the data. Let V1 is equal to 1.9 volt, V2 is equal to 10.21 volt and V3 is 12.10 volt. Okay. Now keep in mind that voltage को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहें तो वोल्टेज की जो अमाउंट होती है, जैसे 1.9 वोल्ट लिखा हुआ है, तो आई कैन राइट दिस टर्म इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज एनर्जी, यानी जितना V1 पोटेंशियल एक्साइटेशन पोटेंशियल है तो उतनी ही उसकी एनर्जी होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी V1 का एक्साइटेशन पोटेंशियल 1.9 वोल्ट है, देन इट्स एनर्जी इज़ 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट कीप इन माइंड इसको हमें जूल में करना होगा, वरना एनर्जी ऑफ फोटोन के फॉर्मूले को हमें जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके सॉल्व करना होगा। ठीक है, बिकॉज आवर ऐसा यूनिट इज़, हमारा ऐसा यूनिट क्या है बेटा, जूल है। तो या तो आप इसको यहीं पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट कर लें, मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 करके, वरना फिर आप इसको आगे जाके सोल्यूशन में कर लें, इट्स अप टू यू। आप इस एनर्जी को यहीं पे 1.9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल करके लिख लें, ताकि आगे सोल्यूशन में जब आप जाएँ तो फिर आपको डायरेक्ट वेवलेंथ मिल जाए, वरना आप फॉर्मूले को जो है एनर्जी का जैसे मैंने यहाँ पर किया उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। सिमिलरली द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर V2 is 10.21 volt, so you can write it into energy that 10.21 electron volt, not in joule. Similarly V3 can be written as E3, energy of the third excitation is 12.12 electron volt, and we have to find out the wavelength lambda 1, lambda 2, lambda 3 and speed of light, Rydberg constants, all are given over there. So this is the data, but you have to convert all energies from electron volt to joule. यहाँ पे मैंने फोटोन के फॉर्मूले को जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करके लिखा है, ताकि वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए। Okay, now in the solution for lambda 1, since we know that equation of photon एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो उसे जूल में लाने के लिए हम क्या लिखेंगे, E1 इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा 1 के साथ हमने E को यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दिया, जिससे जब हम इसकी वेवलेंथ के लिए इक्वेट करेंगे, इक्वेट फॉर लैम्डा, तो HC अपॉन E1 इंटू E। तो यहाँ पे एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पीछे गिवन थी, तो जब आप उसे E से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा यूनिट में यानी कि जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। By placing the values you will get your lambda 1 is 654 nanometer. Okay,
So this is the solution of the first part. Similarly, for the second spectral line, lambda 2, equation of photon energy, E2 is equal to hc upon lambda 2e. तो lambda 2 इक्वेट फॉर द lambda 2, इट विल बिकम hc अपॉन E2e. तो E2e यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो जूल में आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब आप E से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर जूल में कन्वर्ट हो जाती है. बाय प्लेसिंग दी वैल्यूज़ you will get our lambda 2 is 121.75 nanometer or exponent minus 9 meter. Similarly, in the same way, we will solve the third spectral line, lambda 3. Now the third spectral line is for lambda 3. Here you can see get electron आया, फोटोन ने एक्साइट किया इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ 10⁻⁸ सेकेंड के लिए रुका, फिर डी एक्साइट हुआ और उस एनर्जी को इसने फोटोन की फॉर्म में इमिट कर दिया. तो एक एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का मैकेनिज्म यहाँ पे आपको दिखाया गया. सिंस वी नो इक्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन E3 इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा 3 इंटू ई. तो यहाँ पे अगर एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो उसे जूल में कन्वर्ट करने का ये आसान तरीका है इस फार्मूले से. ओके, तो लैम्डा 3 इज इक्वल टू hc अपॉन E3 इंटू ई बाय प्लेसिंग दी वैल्यूज़. नाउ यहाँ अब जो नीचे एनर्जी आई है फोटोन की या एक्साइटेशन की वो जूल में कन्वर्ट हो चुकी है. तो हमारा सारा सिस्टम ऐसा यूनिट में आ चुका है एंड विल गेट अवर लैम्डा 3 इज़ 102.74 एक्सपोनेंट माइनस 9 मीटर. ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम नंबर 21. आई रिपीट कि अगर आप चाहें तो E इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन का फार्मूला hc ओवर लैम्डा होता है, लेकिन एनर्जी जो है वो आप पहले ही जूल में कर लें तो फिर यहाँ E से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कुछ बच्चे हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा अप्लाई करें और एनर्जी जो पीछे 1.9 या 10.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखी हुई है उनको पहले ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट कर लें, तो उन्हें वहाँ पर भी उसे इस E से मल्टीप्लाई करना होगा. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. It's a very toughest or difficult numerical of this chapter. Okay, now problem number 22. This is the toughest numerical of this chapter. So in an hydrogen atom, an electron experiences a transition from a state whose binding energy is 0.54 electron volt to the state whose excitation energy is 10.2 electron volt. Calculate the quantum numbers of the two states, the wavelength of the photon emitted. ओके, तो यहाँ पे इस सवाल में कहा जा रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था इसके न्यूमेरिकल्स के फार्मूला में, जैसे जो बोहर का थर्ड पोस्टुलेट की जो फार्मूला शीट है, स्लाइड है, उसको दोबारा देख लें आप लोग. तो शेल की जो एनर्जी होती है हमारे पास वो हमेशा नेगेटिव होती है, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं या एनर्जी ऑफ द शेल्स और ऑर्बिट भी कहते हैं या स्टेट भी कहते हैं. तो यहाँ पे एक बाइंडिंग एनर्जी गिवन है जो कि 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो अंडरस्टूड बात है कि आपको नेगेटिव लिखनी होगी. अब यहाँ पे कहने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो डी एक्साइट हो रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है किसी स्टेट से. उस स्टेट का हमें वो नहीं पता कि उस स्टेट का क्वांटम नंबर क्या है, कौन सी स्टेट है, लेकिन उस स्टेट की हमें क्या दी गई है, उस ऑर्बिट की हमें बाइंडिंग एनर्जी गिवन है 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो मान लीजिए ऐसे ये इलेक्ट्रॉन रेड कलर का नज़र आ रहा है, किसी Ni स्टेट से डी एक्साइट होकर किसी दूसरी स्टेट पर आ रहा है और इस स्टेट की जो बाइंडिंग एनर्जी गिवन है वो कितनी है 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये नेगेटिव आएगी. तो इसको हम ENI भी लिख सकते हैं बिकॉज एनर्जी ऑफ इनिशियल क्वांटम नंबर टू अ स्टेट. अब किसी ऐसी स्टेट पर आ रहा है जिसकी एक्साइटेशन एनर्जी, यानी कि वो स्टेट ग्राउंड नहीं है, वो E1 नहीं है. एक्साइटेशन जब भी हम वर्ड यूज़ करते हैं इसका मतलब कि वो चीज़ ग्राउंड से अबव होगी, यानी n इज इक्वल टू 1 नहीं है, फर्स्ट शेल नहीं हो सकता, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, लेकिन फर्स्ट नहीं हो सकता. इसका मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर फर्स्ट शेल पे नहीं आ रहा, के शेल पे नहीं आ रहा, n इज इक्वल टू 1 पे नहीं आ रहा, किसी ऐसे शेल पर आ रहा है जो कि मज़ीद ग्राउंड से अबव है. तभी यहाँ पे वर्ड आया एक्साइटेशन एनर्जी का.
तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है बात। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि वो कौन से शेल से कौन से शेल पर आया है, लेकिन जहाँ पर भी वो डी एक्साइट हुआ है वो शेल E1 नहीं है, वो ग्राउंड स्टेट नहीं है, वो n=1 या K शेल नहीं है। ये बात यहाँ से बात वाज़ेह हो गई। अब जिस शेल पर भी आया है वहाँ पर उसकी एक्साइटेशन एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फार्मूला में मैंने आपको बताई भी थी ये बात कि फोटोन की एनर्जी यानी कि बोहर का थर्स्ट पोस्टुलेट जो है कि डेल्टा E हाई माइनस ई लो। तो ई हाई और ई लो तो है आपके पास ऑर्बिट की एनर्जीज़ होती हैं जो कि नेगेटिव होती हैं, लेकिन जो डेल्टा ई आता है आपके पास, जिसको हम एनर्जी ऑफ फोटोन भी कह देते हैं, एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन भी कह देते हैं, लेफ़्ट साइड पर वो सब क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। ये दोबारा आप पीछे फॉर्मूलों को देख लेंगे तो आपको एक दोबारा ओवरव्यू मिल जाएगा। तो ये हमें नहीं पता कौन सा शेल है, सेकंड है, वैसे तो सेकंड होगा, लेकिन हमें प्रूफ करना होगा, साबित करना होगा, लेकिन ये n=1 नहीं है। इस शेल को हमने कह दिया NF, इस शेल को हमने क्या कह दिया है, NF। ओके, नाउ मेकिंग इट्स डेटा और ये दीज आर दी आंसर्स। सो लेट इनिशियल स्टेट यानी कि Ni के स्टेट की जो ब्लू कलर से ऑर्बिट बना हुआ है उसकी बात हो रही है। वहाँ पे आपके पास ENI गिवन है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि शेल की एनर्जी पता है हमें, तो इसके शेल के क्वांटम नंबर यानी कि इसका शेल नंबर ही पता कर सकते हैं। Ni आपको फाइंड आउट करना होगा और E1 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि न्यूक्लियस के बाद ये जो प्लस साइन के बाद जो पहला लाइट ब्लू ऑर्बिट नज़र आ रहा है रेड से पहले, ये आपके पास E1 है। अब रेड ऑर्बिट हो सकता है E2 हो, E3 भी हो सकता है, 4th भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, हम उसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हमें इनिशियल स्टेट का शेल नंबर पता है, तो उसका क्वांटम नंबर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है और E1 हमारे हमेशा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सिमिलरली फाइनल स्टेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस स्टेट की आपको क्या गिवन है, एक्साइटेशन एनर्जी गिवन है, और एक्साइटेशन एनर्जी यानी कि फोटोन की एनर्जी गिवन है जो कि क्या होती है, प्लस होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये शेल की एनर्जी नहीं है, उस शेल पर एक्साइटेशन एनर्जी आ रही है। शेल की एनर्जी सारी नेगेटिव आती हैं, फोटोन की एनर्जी, एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी सब क्या आती हैं, पॉजिटिव आती हैं। कीप इन माइंड, ये सारी बातें पहले बता दी गई हैं। देन आपको शेल का जो है शेल की एनर्जी मालूम करनी होगी। जैसे बात है, शेल की एनर्जी पता चलेगी जब भी तो उसका आपको क्वांटम नंबर या उसका शेल नंबर पता चलेगा। फिर आपने इसका शेल नंबर भी मालूम करना होगा और इसके लिए भी E1 जो है वो -13.6 ही रहेगा। तो इट्स अ क्वाइट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, ये काफ़ी मुश्किल न्यूमेरिकल है, इसको तहम्मुल से समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को दोबारा देखिएगा तो थोड़ा सा आपकी क्लियरिटी होती जाएगी। ओके, एट दैट सिचुएशन यू हैव टू फाइंड आउट दी वेवलेंथ, यानी कि दो अगर आपको ऑर्बिटल नंबर्स मिल जाते हैं, क्वांटम स्टेट्स मिल जाती हैं, तो आप उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फार्मूला ऑफ 1/NF² - 1/Ni² मल्टीप्लाई बाय RH। एंड C, Rydberg constant, Planck constants are given over there. Okay, note down the diagram and note down all data very carefully. Now I am coming towards its solution. Okay, now in the solution, so for Ni, quantum number of the initial state, हम हायर स्टेट का सबसे पहले क्वांटम नंबर फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमारे पास उसकी शेल की एनर्जी मौजूद है। सिंस वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी ऑफ n बराबर होता है E1/n1²। तो हमें Ni निकालना है, तो Ni इक्वेट फॉर Ni E1/ni √E1/ni. By placing the value you will get 5.21, that is by rounding off N1 Ni = 5th शेल, यानी कि जिस शेल पे इलेक्ट्रॉन की आपको एनर्जी गिवन है जहाँ से वो डी एक्साइट हो रहा है वो कौन सा शेल है, 5th शेल है। ओके, तो इसलिए अगर हमारे पास किसी भी शेल की एनर्जी मौजूद हो तो उसके शेल नंबर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास यही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और E1 स्टेट। नाउ फॉर ENF, अब हम एनर्जी ऑफ फाइनल ऑर्बिट निकालेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके आ रहा है। आई रिपीट, ये के शेल नहीं है, के शेल के अलावा कोई शेल हो सकता है,
क्योंकि इस एनर्जी में यहाँ पर इसकी एनर्जी में एक्साइटेशन एनर्जी आ रही है। जब कोई चीज़ एक्साइट होगी तो वो ज़ीरो पे थोड़ी ना रहेगी, वो फर्स्ट फ्लोर पे तो नहीं रहेगी, वो E1 यानी कि फर्स्ट के शेल पे तो नहीं रहेगी, के से एल पर गई होगी, एम पर गई होगी, हमें नहीं पता, वही पता चल जाएगा हमें बहरहाल। सो वो थर्ड पोस्टुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू ENI माइनस ENF, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इसको ENF के लिए लिखेंगे और इस फॉर्मूले को हम E एक्साइटेशन इज इक्वल टू ENI माइनस ENF यानी कि E हाई माइनस E लो लिख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल बट हेयर फॉर NF ओनली हम सिर्फ फाइनल ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, इनिशियल ऑर्बिट को तो हमने सॉल्व कर लिया है, बट हेयर फॉर फाइनल ऑर्बिट विद रिस्पेक्ट टू E1, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, इट विल बिकम E एक्साइटेशन ENF माइनस E1। ओके, equate for ENF by placing the value 10.2 plus and minus 13.6, so ENF will become minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर आ रहा है, जिसकी एक्साइटेशन एनर्जी गिवन थी, उस शेल की एनर्जी आ चुकी है हमारे पास माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, हमें इस शेल की एनर्जी मिल गई, तो अगेन जो हमने अभी लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मूला NI का फाइंड आउट किया है, इसी तरीके से हम इसका NF फाइंड आउट करेंगे और हमें फाइनल शेल भी यानी कि फाइनल ऑर्बिट जहाँ पे डी एक्साइटेशन हुई है वो भी मालूम हो जाएगा। नाउ फॉर द NF, अगेन यूजिंग द इक्वेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ENF इज इक्वल टू E1 अपॉन NF स्क्वायर, इक्वेट फॉर NF, तो NF बराबर हो जाएगा E1 अपॉन NF, देन माइनस 13.6 डिवाइडेड माइनस 3.4 इज इक्वल टू अंडर रूट 4, सो NF विल बिकम 2, यानी कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पर आ रहा है डी एक्साइट होकर, जहाँ की एक्साइटेशन एनर्जी गिवन थी, वो कौन सा शेल है, वो सेकंड शेल है। That means this series is belong to Balmer series and lying in the visible region. So now we have got NI and NF. Now we can find its wavelength. For the wavelength, using the equation of wavelength in photon, 1 over lambda is equal to RH 1 upon NF square minus NI square, inversing on the right hand side, and by placing the values we will get its wavelength 434.08 nanometer. So this is the end of a very difficult numerical, problem number 22, and has come in 2005. इस न्यूमेरिकल को बार बार सॉल्व करिएगा, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल है, तो एग्ज़ाम में अगर ये आया तो इसी तरीके से आएगा। Okay class, so this is the last numerical of this chapter, problem number 23, and has come in 1997. The energy of an electron in an excited hydrogen atom is minus 3.4, that is ये नेगेटिव एनर्जी गिवन है, इसका मतलब ये उस शेल की एनर्जी है जिस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दैट एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इजिकल टू NH कट, जिसके लिए आपको इस शेल का क्वांटम नंबर चाहिए होगा। ये पहले शेल में है, दूसरे में है, तीसरे में, किस में है, तो आपको इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या शेल नंबर रिक्वायर्ड होगा, और शेल की एनर्जी गिवन है माइनस 3.4। These are the answers. So in the data, let बाइंडिंग एनर्जी ऑफ nth शेल और En कितनी गिवन है आपको, जिस शेल पे भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसकी nth एनर्जी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मौजूद है आपके पास, गिवन है। Ni आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि जिस शेल पे ये मौजूद है इलेक्ट्रॉन उसकी क्वांटम नंबर आपको मालूम करना है। इसको n भी लिख सकते हैं आप, Ni लिख रहे हैं, इट्स अप टू यू। और ग्राउंड स्टेट आपके पास जो है वो माइनस 13.6 ही मानी जाएगी यहाँ पर, यानी कि ज़मीन से ग्राउंड स्टेट से वो माइनस 3.4 पे जा चुका है इलेक्ट्रॉन। At that condition you have to find out the angular momentum Ln, speed of light, Planck's constant, and moreover drag constant is given over there. Okay, in this diagram you can see that how electron is excited by absorbing photon and then de-excited by emitting same amount of energy in term of photon. तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए ज़रूरी नहीं कि फ़ोटॉन की एनर्जी दी जाए, वो जो है
हीट एनर्जी से, लाइट एनर्जी से, पोटेंशियल डिफरेंस से भी एक्साइट हो जाता है. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड इट्स सोल्यूशन. Okay, now coming towards its solution. So in the solution, for an I quantum number of that orbit, using the equation of the energy of nth orbit, En is equal to E1 upon n I square. आप इसको En is equal to E1 upon n square भी लिख सकते हैं. इट्स अप टू यू. मैंने n के साथ I भी लगाया हुआ है, तो इट्स अप टू यू कि आप इसको सिंपल करके भी कर सकते हैं. इक्वेट फॉर एन आई. सो एन आई इज इक्वल टू E1 अपॉन एन आई स्क्वायर. और एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट हमारे पास कितनी गिवन थी? -13.6 E1 एंड ENI इज -3.4. then by taking under root 4, so you will get its quantum number is 2. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड शेल में ऑर्बिटिंग कर रहा है. अब यहाँ पे हमें उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है. फॉर इट्स एंगुलर मोमेंटम, सिंस वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज ln इज इक्वल टू n h कट और n इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई. अब आप किसी से भी सॉल्व करें, इट्स अप टू यू. बाय प्लेसिंग दी वैल्यूज़ ऑन द राइट हैंड साइड, मैंने h अपॉन 2 पाई वाले फार्मूले में वैल्यूज़ रखी हैं. देन वी गेट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज़ 2.11 (x⁻34 जूल सेकेंड. तो ये एंगुलर मोमेंटम, इसको L2 भी कहा जा सकता है या L भी कहते हैं. इट्स अप टू यू. ओके क्लास, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस होल चैप्टर. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर एंड इट्स प्रॉब्लम नंबर 22. इट्स क्वाइट डिफिकल्ट वन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. सारी जो वर्कशीट्स हैं सेकेंड ईयर के फार्मूले की, वो मैंने यूट्यूब के लिंक्स में मौजूद हैं. फर्स्ट ईयर की कहेंगे तो फर्स्ट ईयर की भी मैं वहाँ पे वहाँ इंक्लूड कर दूँगा, ताकि अगर आप किसी बच्चे को फर्स्ट ईयर का भी मटेरियल चाहिए तो वहाँ से वो उसको देख सकता है, उसके काम आ जाएगा. बट सेकेंड ईयर के प्रॉब्लम ज़्यादा मुश्किल होते हैं, तो सेकेंड ईयर के मैंने सारे लेक्चर्स यहाँ पर डिलीवर कर दिए हैं. आपका पूरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है. चैप्टर नंबर 19 पहले से अवेलेबल है और 18 यहाँ पर एंड हो चुका है. ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर यू. सब्सक्राइब इट और इसको आगे अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो इन दैट पैंडेमिक सिचुएशन. ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. दुआ में याद रखिएगा.